your classmate है, and somehow you get friendship with him, and then he invites you to his home. अब वहाँ जाते हो, and then you can easily meet with Mukesh Ambani. He will see, oh, you are my son's friend. That is very nice. And then you can approach Mukesh Ambani. दोनों केसेस में एक कॉमन चीज़ क्या है? Yes, but किसके थ्रू? Yes. तो उस बड़े आदमी को, राइट, बड़ी पर्सनैलिटी जो बहुत पसंद है, उसको बड़े आदमी को प्लीज करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. बट इफ वी समहाउ प्लीज समवन हु इज वेरी डियर टू दैट पर्सन, देन दैट बड़ा आदमी आल्सो बिकम्स इजीली प्लीज्ड, राइट. उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. सो सिमिलर हैपेंस विद कृष्णा. सो कृष्णा इज वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस, क्योंकि हम यहाँ पर भौतिक जगत में हैं, राइट. एंड इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज कृष्णा, वेरी डिफिकल्ट. बट समहाउ if we please his pure devotee, right, then Krishna becomes automatically pleased. So this is the secret of success. Srila Prabhupada used to say, this is secret of success. If we somehow please Krishna's pure devotee, तब हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती. Then Krishna becomes automatically pleased. So when we sing this Guru Ashtakam, this is for the whole Guru Parampara. जैसे आप देखोगे इसकी हर लास्ट लाइन में है वंदे गुरु श्री चरणारविंदम. Means it's not वंदे गुरु, एक गुरु नहीं, it's the whole Guru परंपरा, starting from Srila Prabhupada अभी आपके लिए, and then Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Anyone remembers उनके ऊपर कौन है? उनके गुरु? नहीं. Yes, Srila गौर किशोर दास बाबा जी महाराज. उनके गुरु? Srila भक्ति विनोद ठाकुर. उनके गुरु? Srila जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज. तो एटलीस्ट यहाँ तक आपको अभी याद होने चाहिए. एटलीस्ट टिल जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, ये जो 5 हैं, we should all remember these up till here. और जो अभी हम आज सिंग करने वाले हैं, try to memorize it, right? अभी तो आप नहीं कर पाओगे, but when you go home, try to sing it every day. जितना भी उसकी you should read lyrics. और जब मैंने आपको एक रिकॉर्डिंग शेयर किया है, you should try to hear it at least once in a day. उससे क्या होगा, आपको अपने आप याद हो जाएगा, right? Now we will sing this. Some start now. उससे पहले से like चलो ठीक है, वो बाद में इसके नाम की बात. वॉल्यूम काफी है. संसरदा वानलले भलोका प्रणाय कारुण्यं संसरदा वानलले भलोका प्रणाय कारुण्यं संसरदा प्राणाय कारुण्य
मथुरा धाम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय, श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय, श्री द्वारका धाम की जय, श्री प्रभुपाद ट्रांसलेटेड बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। All glory to the assembled devotees, Hare Krishna. All glory to the assembled devotees, Hare Krishna. All glory to the assembled devotees, Hare Krishna. All glory to Sri Guru and Sri Ram. All glory to Sri Prabhupada ji. All right. This was a little bit glimpse of our Mangala. So if you come to Mangal Aarati, then you will see the whole movie. This was just a trailer. Om Jnanatimirandasya Jnananjana-Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutam Padakamalam Shri Guru Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Tam Sajivam Savaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamsha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kancana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwanuste Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Hare Krishna. Hare Krishna. So today's topic is going to be the test of a true master. Means who exactly is a true spiritual master, right? इसका मतलब क्या है? Spiritual master यानी इसको हिंदी बोलते हैं गुरु, right? तो इसका मतलब क्या है इस वर्ड का? Why do we even need a spiritual master, right? और spiritual master exactly हम किसको कह सकते हैं? That this is a spiritual master, right? तो इस तरह से हम ये सारे क्वेश्चंस का आज आंसर देंगे. So there is a beautiful verse in Bhagavad Gita. It's my full screen. Okay. Visible है सर? ये लाइट ऑफ करनी चाहिए. ऑफ कर दें? ठीक है. I think वो और लाइट. Okay, so this verse में ये आता भगवद गीता में and Krishna is saying this verse to Arjuna. ठीक है? You can repeat after me. तद्विधि प्रणिपातेना परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः. So भगवान कह रहे हैं just try to learn the truth by approaching a spiritual master. जब अर्जुन भगवान से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं and then Krishna is telling the need of a guru कि एक spiritual master की आवश्यकता क्या है, right? He is saying inquire from him submissively. मतलब जब when you go to a spiritual master तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन means परिप्रश्न means उनसे आप प्रश्न करिए and सेवया उसकी बात की सेवा करिए जो आपके गुरु हैं, right? Why सेवा भगवान ऐसे दे रहे हैं सेवया? Okay, I go. Sevaya because when we hear from the spiritual master, then that knowledge it might not get digested, right? In order to digest that knowledge, to get the mercy, we need to serve also, right? जैसे ये knowledge है, this knowledge is of Srila Prabhupada, means it is of Krishna, but हमें कैसे मिली है Srila Prabhupada की book से? Because उन्होंने translate किया, उन्होंने हमें spawn दिया, anyway we are getting all these facilities, we are getting books, we are getting this knowledge. So we have not manufactured it ourselves. हमने इसको खुद नहीं manufacture किया. We are getting it in a parampara. So also we should serve in that parampara. ताकि जो knowledge हम ले रहे हैं, that becomes digested. जैसे हम खूब खा के एक जगह बैठ जाए, क्या वो डाइजेस्ट होता है? नहीं होता. गैस बनती है, अपच होता है. बट अगर खाए पिए and then we do some running, बाद में थोड़े समय बाद फिर उसको हम
चल फिर के वॉक करें तो वो पच जाओ, राइट। सो सेवा जो है वही काम करता है। एंड देन कृष्णा इज सेइंग एंड रेंडर सर्विस अनटू हिम द सेल्फ रियलाइज्ड सोल कैन इम्पार्ट नॉलेज अनटू यू बिकॉज दे हैव सीन दैट ट्रूथ। उपदेशयन्ति ते ज्ञानम, मतलब आपको ज्ञान का उपदेश दे सकते हैं। क्यों? ज्ञानिना तत्वदर्शिना, क्योंकि ऐसे ज्ञानियों ने तत्व का दर्शन किया, उन्होंने भगवान को, वो जानते हैं भगवान को, राइट। क्योंकि इफ समवन डज नॉट नो गॉड हाउ कैन ही टेल यू अबाउट गॉड। जैसे मार्केट में बहुत सारे ऐसे सो कॉल्ड गुरुज बाबास हैं, राइट। उनसे पूछो हु इज गॉड, आई डोंट नो गॉड बट आई डोंट नो द वे ऑफ लाइफ, आर्ट ऑफ लाइफ, राइट। देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट उनसे पूछो भगवान कौन है, दे गिव सच अ कॉम्प्लेक्स आंसर जो कि उनको कुछ समझ नहीं आया ये बोल क्या गएगा, बट सुनने में अच्छा लगा, राइट। बट इफ दे डू नॉट नो अबाउट गॉड दे शुड नॉट प्रीच अबाउट गॉड, क्योंकि वही प्रीच कर सकता है जो जानता है। So Krishna is telling that yes, there is a need to go to someone who has seen God, who knows God, क्योंकि वही आपको बता सकता है। Okay, so now we see the absolute necessity of a spiritual master. So sometimes when we talk about importance of accepting a spiritual master, then people they tell that we should not blindly surrender to someone. मतलब हम जो किसी को माने कि वो कोई क्या कह रहा है, right? So people give this argument. They think that will it not be much better if I were to think of myself, यानी कि हम खुद ही सोच लेंगे, खुद ही भगवान तक पहुंच जाएंगे, हमें क्या जरूरत है किसी मिडिल मैन की। जैसे कुछ मूवीज में, राइट, पीके ओ माय गॉड कि बीच बिचौलियों की जरूरत नहीं है हमें, बिचौलिए भगवान तक हमें नहीं ले जाएंगे, हम खुद जा सकते हैं, राइट। बट द थिंग इज यस डेफिनेटली अगर कोई ऐसा है जो कि भगवान को नहीं जानता, उससे बेटर तो ये किसी के पास ना जाए, राइट। जैसे अगर कोई बीमार है तो एक नकली डॉक्टर के पास जाना चाहता है, किसी डॉक्टर के पास ना जाए। बट क्या बिना डॉक्टर के ठीक हो जाएगा कोई खुद से? नहीं। तो हमें नकली डॉक्टर से बचना है, बट असली डॉक्टर के पास जाना भी है। सो दिस इज नॉट अ वेरी नाइस आर्ग्यूमेंट, राइट, कि हम खुद से कर लेंगे, बिकॉज वी आर इन अ कंडीशन स्टेट। जो एक मरीज होता है, राइट, अगर उसके अंदर इतना ही क्षमता होती अपने आप को ठीक करने की, वो बीमारी ना पड़ता, राइट। बट अब वो बीमार है, देन ही नीड्स केयर फ्रॉम समवन, ही नीड्स समवन हु नोज द क्योर, जिसको बीमारी का इलाज पता है। So that is why there is absolute necessity of a spiritual master. And then we see in everyday life, हम जब देखते हैं, because people they are afraid कि नहीं कोई किसी गुरु वगैरह पे इन सब पे हमें नहीं जाना, किसी भी ट्रस्ट नहीं करना, right? But we see in everyday life also we trust so many people. क्योंकि बिना ट्रस्ट के हमारी जिंदगी चलती नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब कोई डॉक्टर पे जाता है, डॉक्टर सिंपली लिख देता है कि ये वाली गोली दिन में 3 बार, ये वाली 2 बार। उसका हम एक्सपेरिमेंट करते हैं केमिस्ट्री में, कुछ गोली का कुछ पहले पाउडर किया, उसका लिटमस टेस्ट, पीएच टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, उसके बाद उसकी केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब कुछ करके अब ये दवाई थोड़ी सही लगेगी। हाँ, डू वी डू दैट? जब बीमार होते हैं कि एक्सेप्ट वॉट एवर द डॉक्टर सेज, क्यों? सब क्योंकि वी नो दैट ही इज बोनाफाइड, ऑथराइज है, और जो नॉलेज इसके पास है वो गवर्नमेंट ने सर्टिफाई की है, राइट। बट हम ऐसे किसी झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं, हम जानते हैं अगर ये बोनाफाइड है तो उसके पास चले जाइए। यस, सिमिलरली वी सी, हमने पहले डिस्कस किया, इफ समवन वांट्स टू नो अबाउट हु इज सिस्टर, हु इज ब्रदर, हु इज फादर, फ्रॉम होम वी गेट टू नो फ्रॉम मदर। जब से बच्चा छोटा होता है, राइट, वी डू नॉट डाउट द वर्ड्स ऑफ मदर आल्सो। एंड इवन अगर कोई वी सी इन दिस पिक्चर, कोई कटिंग कराने जाता है बार्बर के पास, शेव कराने, उसके गले में चाकू रखा होता है, चिल्लाता नहीं है वो, बिकॉज उसको भरोसा है कुछ नहीं करेगा। कर सकता है, वी नो करेगा नहीं, क्यों? बिकॉज बहुतों को पहले भी कर रहे हैं और थोड़ा विश्वसनीय है, तो हम पूरा अपना गला उसके चाकू के हाथ में दे देते हैं, एक ऐसा अनजान व्यक्ति के, विद फेथ, विद ट्रस्ट। एंड सिमिलरली जब हम एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, हमें भरोसा होता है कि ऐसा नहीं सीबीएसई का पढ़ के जाएंगे तो आईसीएसई का आएगा, नहीं आएगा। जो पढ़ के गया है, फर्स्ट क्लास का पढ़ के गया है, फर्स्ट ईयर का, थर्ड ईयर का कोर्स नहीं आएगा, फर्स्ट ईयर का ही आएगा, राइट। विद दिस फेथ वी गो। सिमिलरली वी नीड फेथ इन एवरी एस्पेक्ट, हमें फेथ तो करना पड़ता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम कॉशियस ना रहें, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फेथ करना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम कॉशियस ना रहें, किसी भी चीज़ पे, किसी भी टॉप टिक एंड हैरी पे कहीं भी फेथ करें, नो, दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। And even we see that in whatever sphere of our life, we need some teacher. हमें हर जगह टीचर की जरूरत पड़ती है। जैसे इवन अगर किसी को डांस सीखना है, भरतनाट्यम है, कथकली, ये सब जो है, right? They all need a teacher, and it takes many years for them to learn some dance form. And similarly, even किसी को अगर
क्रिकेट सीखना है, देयर इज क्रिकेट कोच। इवन टीम इंडिया विराट कोहली को भी जरूरत पड़ती है एक कोच की, राइट? एंड इवन वी सी दैट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही हैज मेनी काउंसलर्स, मेनी एडवाइजर्स, जिनसे वो एडवाइस लेते हैं। ही आल्सो नीड्स टीचर्स। इवन अ गिटार प्लेयर यहाँ पे भी है, राइट? वी नीड अ टीचर टू लर्न गिटार। किसी भी चीज़ के लिए वी नीड अ टीचर। देन हाउ इज इट पॉसिबल कि जो लाइफ का सबसे बड़ा लक्ष्य है, दैट इज टू गो बैक टू कृष्णा, टू गो बैक टू गॉड, to get a spiritual life, spiritual body, and living behind this material body. उसके लिए how can we expect that we will not need some teacher, right? And we see हम लोग, मैंने खुद ने किया है, क्या करते हैं हम एग्जाम से पहले जस्ट जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ पढ़ा, हाँ हो गया, क्लास में जाते नहीं है और अटेंडेंस के लिए बस किसी ना किसी तरह से दोस्त को बोलते थे प्रॉक्सी लगा दियो और अटेंडेंस मिल गई। एग्जाम के टाइम में जस्ट 2 दिन पहले अच्छे से सब कुछ पढ़ के एग्जाम दे दिया, नंबर आ गए, एंड आई एम डन। एंड दिस कैन वर्क विद अस, दिस कैन वर्क इन मटेरियल सेंस, इन मटेरियल लाइफ, बट इन स्पिरिचुअल लाइफ इट डज नॉट। उसका रीजन because spiritual life is a very serious business, and any sincere seeker of truth can understand the need of a bona fide teacher, a bona fide guru. Because this path is not a path where we can do something on our endeavor. Endeavor से मेरा मतलब था कि सपोज अगर हमें कुछ मटेरियल नॉलेज लेनी है, एग्जाम्स क्लियर करने हैं, उसमें हम क्या अपने endeavor से, अपनी मेहनत से कर सकते हैं। मैंने मेहनत की, नंबर आ जाएगी, राइट? मेहनत नहीं की, नंबर नहीं आएगी। But bhakti is a path of grace. It's a path of mercy. Because जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, अगर मुकेश अंबानी को खुश करना है, it is very difficult. But if I somehow please his, let's say grandson, उसका जो पोता होगा, if I manage to please him, then मुकेश अंबानी will automatically be pleased. So यहाँ पर जो बात आती है, it's about pleasing Krishna. Because can someone be more intelligent than Krishna? इट्स नॉट पॉसिबल। सो अगर मैं सोचूँ अपनी इंटेलिजेंस के बेसिस पे, अपनी करेज के बेसिस पे, अपने फेम, नेम, स्ट्रेंथ, वेल्थ, किसी चीज़ के बेसिस पे कृष्ण को प्लीज करूँगा, इज इट पॉसिबल? जो हमारे पास है ये भी भगवान से है, जो हमारे पास कुछ 6 शैलों में से थोड़े थोड़े हैं। कौन से? स्ट्रेंथ, नेक्स्ट फेम, ओके, हाँ, ब्यूटी, यस, स्ट्रेंथ, फेम, ब्यूटी, पावर का स्ट्रेंथ हो गया, इनन्सिएशन, नॉलेज, वेल्थ हो गया, वेल्थ हो गया नहीं हुआ, ओके, वेल्थ, यस, 6, राइट? सो हमारे पास जो है वो भी एक्चुअली भगवान की है, हमारे पास कुछ थोड़े से हैं, बट कृष्णा हैज दैट इन इनफाइनाइट क्वांटिटी एंड फॉर इटर्निटी, हमेशा के लिए। तो क्या हम इन चीज़ों से भगवान को खुश कर सकते हैं? नो। किस चीज़ से खुश कर सकते हैं भगवान को? यस, बाय डिवोशनल सर्विस, by our bhakti, right? By our spiritual emotions with which we serve Krishna. Bhakti मतलब devotional service. Devotion भी और service भी है. So with that we can please Krishna. But still it is very difficult to please Krishna. So but when we please his representative, then Krishna becomes automatically pleased. So it's a path of mercy, a path of grace, not a path of our own endeavor. इसलिए without spiritual master, without a pure devotee's guidance, we cannot advance. So we see कि ये सब समझने के लिए भगवान जब यहाँ पर आते हैं अलग अलग अवतारों में, तो then also he sets a standard for us. क्योंकि अदरवाइज भगवान को क्या जरूरत है गुरु एक्सेप्ट करने की? But when he comes, then just to set a standard for us, he himself accepts a teacher, a guru. So when Krishna came, he accepted who? Sandeepani Muni as his guru, right? And the famous pastime of Sudama and Krishna, it took place there in Sandeepani Muni's ashram. तो दोनों वहीं पे थे। And then we see when Lord Ramchandra came, he accepted वशिष्ठ मुनि as his guru. तो ऐसा नहीं है वशिष्ठ मुनि भगवान से ज़्यादा जानते हैं। जैसे कि एक स्टोरी है, when दशरथ जी he took all his 4 sons, राम, लक्ष्मण, भरत and शत्रुघ्न, जब इन चारों जब एक सर्टेन एज पे आ गए, and he took them to their गुरुकुल, जब ये गुरुकुल लेके गए तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि दशरथ जी आप जाइए, अब आई टेक केयर ऑफ देम, अभी मेरे बच्चे हैं, आप चिंता मत करिए, मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूँगा, तो जो भी ज़रूरी शिक्षा में सब दूँगा, आप वापस जाइए। दशरथ जी कहते थे लेकिन मुनिवर मुझे एक बार देखने तो दीजिए, मतलब मेरे जो बच्चे हैं कैसे लगते हैं, धनुष बाण उठाएंगे कैसे लगेंगे, तो कैसे ये नॉलेज देते हैं, मुझे मेरा बड़ी इच्छा है इनको देखने की। वशिष्ठ मुनि कहते हैं नहीं, मैं आपको सामने नहीं कर पाऊँगा।
तो आप प्लीज़ पहले चाहिए, तभी मैं इनको पढ़ा पाऊँगा, अदरवाइज मैं इनको पढ़ा ही नहीं सकता। देन उनके बहुत आग्रह करने पर दशरथ जी फिर चले जाते हैं। एंड देन एज सून एज ही गोज, देन वशिष्ठ मुनि ही पेज फुल एडवाइस टू ऑल 4 ब्रदर्स, क्योंकि वो चारों जो हैं दे आर ऑल विष्णुदत्त, श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न एंड श्री हनुमान, ऑल 4 of them, they are all equivalent, all विष्णुदत्त। He pays obeisance, he says that oh Lord, actually तो आप स्वयं भगवान हैं, आप ही के ही एक एक्सपेंशन के लिए एक एम्पावर जो है वो ब्रह्मा जी हैं, और वो ब्रह्मा जी से यहाँ चारों वेद आते हैं, राइट, उन्हीं से सरस्वती का एक्सपेंशन होता है, और उनका एक छोटा सा कण भर मैं जानता हूँ, मैं क्या आपको पढ़ाऊँगा। तो ये केवल आपकी मेरे ऊपर एक कृपा है कि आप मुझे गुरु के रूप में एक्सेप्ट करें, मुझे ये सेवा दे रहे हैं। एंड सेम विद इट हैपेंड विद लॉर्ड चैतन्य, व्हेन लॉर्ड चैतन्य he went to Gaya, there he accepted his spiritual master whose name was Ishwar Guru, Ishwar। So the same thing is it happened with Ishwar Puri also, क्योंकि जो ईश्वर पुरी थे, हम कभी इनकी डिटेल में स्टोरी सुनाएंगे, ईश्वर पुरी एंड हिज स्पिरिचुअल मास्टर माधवेंद्र पुरी, वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। कभी हम आगे मे बी अप्रैल या मई में चंदन यात्रा के टाइम पर इनकी स्टोरी सुनेंगे, वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। ईश्वर पुरी ने अपने गुरु यानी माधवेंद्र पुरी की बहुत अच्छे से सेवा की थी। He was a very very dedicated disciple of माधवेंद्र पुरी। So even जब माधवेंद्र पुरी अपने फाइनल डेज में थे, ईश्वर पुरी used to clean his stool, उनको नहलाते थे, उनके कपड़े चेंज करते थे इस तरह से। And then माधवेंद्र पुरी was very very pleased with his service। तो माधवेंद्र पुरी ने उनको खूब आशीर्वाद दिया कि आपको इसी जन्म में ही भगवान कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं। And then with this blessings, Ishwar Puri got Lord Chaitanya, who is Krishna himself, as his own disciple. So we see that when Krishna comes in any form, he sets an example by himself accepting a spiritual master. And then there is a dialogue between Srila Prabhupada and a reporter, that what if a genuine seeker of truth comes across a fake guru? ये क्वेश्चन आ सकता है मन में, कोई व्यक्ति जो है वो जेन्युइन है, राइट, बट उसको एक गलत गुरु मिल गए, फिर क्या होगा, राइट। तो इसका हम पढ़ते हैं। सो एक रिपोर्टर पूछ रहा है that have you ever had people come to you who had previously been involved with fake guru? क्या आपके पास कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जो कि पहले किसी गलत बाबा जी गुरु जी के पास कभी पहुंच गए? Then Srila Prabhupada said yes, there are many. And then the reporter says, were the spiritual lies in any way spoiled by fake gurus? क्या जो ऐसे होंगे जो बाबा जी थे, क्या उन्होंने ऐसे लोगों की जो आध्यात्मिक जीवन था उसको नष्ट कर दिया? And Srila Prabhupada says, no, they were genuinely seeking something spiritual. वे लोग वास्तव में कुछ बहुत ऊंचा यानी कुछ आध्यात्मिक सर्च कर रहे थे, उसको ढूंढ रहे थे, and that was their qualification. ये उनका qualification था। God is within everyone's heart, and as soon as someone genuinely seeks Him, He helps that person find a genuine guru. क्योंकि भगवान जो है हम सबके हृदय में है। Otherwise एक बात बताओ, why does Krishna reside in our heart? भगवान हमारे अंदर क्यों? Because when we come to the material world, भगवान हमारे साथ साथ में आते हैं, और जिस भी शरीर में हम जाते हैं कृष्ण comes along। और ये अर्जुन कठोपनिषद में आता है that इसको एग्जाम्पल कैसे एक्सप्लेन किया गया है, जैसे एक पेड़ की ब्रांच है, उस पर 2 पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी जो है वो पेड़ का फल खाए जा रहा है, राइट, और दूसरा पक्षी जो सिर्फ उसको देख रहा है कि कब फल खाना बंद करेगा, वो मेरी तरफ देखेगा, और एक कब वंस अगेन मेरे से बात करेगा, एंड ही विल बी हैप्पी टुगेदर। जो पहला पक्षी है कि फल खा रहा है, हाँ बद्ध जी बात, राइट, जो कि संसार में भोग में लगे हुए हैं, और जो दूसरा पक्षी है वो है परमात्मा, यानी भगवान कृष्ण खुद जो हमारे अंदर है, परमात्मा रूप हर एक के अंदर है, एंड ही इज वाचिंग अस एवरी टाइम, राइट। सो व्हेनेवर कृष्णा सीज दैट दिस पर्सन, ये जो व्यक्ति है, नाउ ही इज बिकमिंग वेरी जेन्युइन, अब ये मुझे ढूंढना चाहता है, एंड देन कृष्णा सेंड्स समवन, भगवान अपने किसी एक डिवोटी को उसके पास भेजते हैं, who can show him the way, show him the path how he can come back to Krishna, like that. इसमें we see there are so many examples, जैसे अगर मैं बात करूँ His Grace Amogli Prabhuji, so Prabhuji directly ISKCON में नहीं आए थे, right? Even right since his childhood, Prabhuji की इतनी intense desire थी that I want to know God, I want to see God, I want to know like so many answers, और Prabhuji चाहते थे कि एक बार भगवान से मिलेंगे, उनको थैंक यू बोलेंगे, उन्होंने मुझे इतना कुछ दिया, एंड देन ही विल कम बैक। तो Prabhuji left his home, 12वीं क्लास के बाद Prabhuji ने अपना घर छोड़ दिया था, and he was from a very aristocratic family. Amogli Prabhuji is from like very well-off background. So even
and he left his home after class 12. He wrote his exams, 12th exam दिए, he left. अब पता नहीं कहाँ जाना है. Like हम तो we are very very fortunate. हम एक ही जगह पे आए, bang on, perfect, right? Even मैं directly मैं सीधा नहीं आया, मैं तो कहीं नहीं गया. But we see devotees like Amogila Prabhuji who are always in search कि भगवान कौन है, कहाँ पे मिलते हैं, right? हम लोग भागते हैं घर छोड़ के किसी लड़की के पीछे, कभी माता पिता ने डांट दिया, बॉम्बे जाना है, एक्टर बनना है. But there are devotees like Amogila Prabhuji who left home for whom? To know Krishna, to know God. So then he left his home, he went to various places. I think Prabhuji went to first to Jaipur. वहाँ पे तो कोई अलग-अलग organizations हैं, वहाँ पे गए, ब्रह्म कुमारी वगैरह, right? And then he found कि हम लोग सही knowledge है ही नहीं. All they are speaking is इधर-उधर की बातें, भगवान के बारे में कुछ बताते ही नहीं है. बस थोड़ा ऐसे खाइए, ऐसे सोइए, ऐसे रहिए, थोड़ा प्राणायाम कर लीजिए, done. उनका कुछ अंदर कंटेंट ही नहीं है, right? And then he left from there. But why did he leave from there? गॉड के बारे में बताया. But still God के बारे में नहीं बताया. बहुत सारे लोग जाकर रुक जाते हैं वहाँ पे. Why did Prabhuji not stay there? Why did he leave? He wanted to know something. Something higher. Yes. Unsatisfied. ये unsatisfaction कहाँ से आ रहा है? परमात्मा से. Yes. So qualification क्या है? Genuine seeker. हम जो श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं. No, they were genuinely seeking something spiritual. Yes. So Prabhupada is saying they were genuinely seeking something spiritual. So when a person is genuinely seeking something very very high, जब वो व्यक्ति भक्ति के लिए ही आता है, then Krishna who is in the heart उसको satisfy होने नहीं देते, क्योंकि किसी को जो चाहिए उसको मिल ही नहीं रहा वहाँ पे, right? Just suppose आपको मैं बोलूँ कि कल हम एक जगह चलेंगे, वहाँ पे आप सबको वापसी आते हुए 10-10 हज़ार में मिलेंगे, right? आप वहाँ पे चलोगे मेरे साथ, आप हर थोड़ी देर पूछोगे मुझे कब मिले, थोड़ी देर प्रोजेक्ट अभी मिलेगी, लग नहीं रहा यहाँ पे कुछ मिलेगा मुझे, प्रोजेक्ट कब मिलेगा बताओ. अब now once you get to know कि ऐसे झूठ बोल के मुझे ले आया है, what will you do? चले जाओगे वापस. Why? Because जिस पर्पस के लिए आप आए थे वो पर्पस सॉल्व ही नहीं हो रहा. And similarly, when we really want to know Krishna, when we want to know God, when we want answers कि मैं यहाँ पे क्यों, मेरी लाइफ में इतना दुख क्यों है, why do I die, जो मेरे क्लोज रिलेटिव्स हैं जिनसे मैं प्यार करता हूँ, why will they die, जब इनका एक bona fide आंसर नहीं मिलता, this is actually genuinely seeking the truth. इनका आंसर नहीं मिलेगा, that genuine seeker will leave. But अगर कोई किसी की डिजायर जेन्युइन नहीं है, वो क्या करेगा, वो देखेगा कि यार यहाँ पे सही है, मतलब कुछ समय बाद मैं भी बड़ा बन जाऊँगा, मैं भी कुछ बड़ी पोस्ट ले लूँगा, यहाँ पे बस मज़े हैं भाई, बढ़िया ज़िंदगी है, यहाँ पे कुछ काम वाम करना नहीं है, मज़े की ज़िंदगी है, खाना मिल ही जाता है, सोने के लिए कमरा दे देंगे मुझे, बढ़िया है, यहीं रह लेता हूँ, राइट? वो रुक जाएगा ऐसे किसी आश्रम में या किसी जगह पे, बिकॉज इसकी जो डिज़ायर्स थी वो प्योर नहीं थी. दिस पर्सन डिड नॉट कम टू नो गॉड, दिस पर्सन जस्ट केम आउट ऑफ केयरलेसनेस, ऐसे, राइट? सो yeah, even we see यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि if such a person genuinely seeks God, Krishna will send some devotee. ऐसा हम किसके केस में देखते हैं? Almost हर केस में, जैसे कि ध्रुव महाराज, उनको नहीं पता था भगवान कौन है. He just left for the forest and Krishna becomes worried कि मुझे ढूंढने निकला है and how can he come back to me, मुझे किसी को भेजना पड़ेगा. And then he sends Narad Muni. And then Narad Muni क्या करता है, initially टेस्ट लेते हैं. So Guru has a right to take small test इस तरह से, right? Before imparting the knowledge. Then Narad Muni test लिया and then finally he gave him the mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yes. Similarly, you see in every case, whenever a person generally seeks Krishna and Krishna shows him the path. And then reporter asks, have the real gurus like yourself ever tried to put a stop to the false gurus? That is, put pressure on them to put them out of business, so to speak. मतलब क्या आप लोग ऐसे नहीं कुछ करते कि जो so called बाबा जी हैं, गुरुस, मतलब जो बोगस हैं, जो जेन्युइन नहीं हैं, जो केवल अपनी दुकानदारी के हैं, आप उनको कुछ काम ठप करा दीजिए. ये रिपोर्टर पूछ रहा है. And then Prabhupada said, no, that is not my purpose. ये मेरा काम नहीं है. I started my movement simply by chanting Hare Krishna. मैंने जस्ट सिर्फ हरे कृष्ण चैंटिंग करके स्टार्ट किया था. जैसे कि श्रील प्रभुपाद के एक डिसाइपल थे, उनका नाम था मुकुंद महाराज. अब उन्होंने जस्ट अपने रियलाइजेशन शेयर कर रहे थे that what attracted him the most about Krishna consciousness. So he said
that Prabhupada was not practicing Krishna consciousness to attract followers. उनका पर्पस ये था ही नहीं मुझे फॉलोअर्स चाहिए या मुझे इस्कॉन फॉलो करना है ये करना है. He was just genuinely doing bhakti. वो just हमेशा genuinely भक्ति कर रहे होते थे. Sometimes he is chanting alone, sometimes he is doing kirtan, he is cooking prasadam for the hippies. He is genuinely doing whatever level of bhakti he is practicing, and this attracted me the most. क्योंकि उस समय जो so called कुछ गुरुज वगैरह यूएस में गए थे पहले बहुत सारे, वो किस लिए गए थे? अपनी फॉलोअरशिप बढ़ाने के लिए कि हमारा भी नाम होगा, वेस्ट में जाएंगे. But Prabhupada was genuinely in love with Krishna. उनको मतलब नहीं था कितने लोग बैठ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं. He was not concerned. So Prabhupada is further saying, I chanted in New York in a place called Tompkins Square Park, and soon people began to come to me. In this way, Krishna consciousness movement gradually developed. And many accepted, and many did not accept. Those who are fortunate, they have accepted. So then, जो ये है reporter, she further asks, don't you feel people are suspicious because of their experience with fake gurus? मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि जो लोग हैं क्योंकि वो गलत एक्सपीरियंसेस ले चुके हैं सो कॉल्ड नकली गुरुओं के पास जाकर, नकली बाबाओं के पास जाकर, सो नाउ दे आर अफ्रेड टू अप्रोच एनीवन. अब वो किसी के पास जाने से डरते हैं. जैसे कि आप किसी डेंटिस्ट के पास गए, उसने दांत ठीक करने की जगह आपका दांत तोड़ दिया. अब आप अगली बार किसी भी डेंटिस्ट के पास जाने से डरोगे, राइट? इसको बोलते हैं ना, छाछ दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है. So in the same sense, now Prabhupada replies, yes, naturally, if you are cheated, you become suspicious. But this does not mean that if you are cheated once, you will always be cheated. You should find someone genuine. But to come to Krishna consciousness, you must be either very fortunate or well aware of the science of Krishna consciousness. इसको बताया जाता है जैसे कि सपोज अगर कोई कहता है कि दिल्ली शहर में बहुत चोर है, राइट? सो इट डजंट मीन कि आप चोर हो. वी ऑल नो ही इज अ वेरी नाइस बोडी निकल शो, राइट? बट आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई भी चोरी करता है. बट वी ऑल स्टे इन दिल्ली, बट हमें से कोई चोर है नहीं है. सो इसका अगर हम बोलते हैं कि इस शहर में बहुत चोर है, ये मतलब नहीं कि सारे इस शहर में चोर है. इट मीन्स यहाँ पे चोर थोड़े ज़्यादा हैं, बट अच्छे लोग भी हैं, राइट? सिमिलरली अगर कलयुग के प्रभाव के कारण बहुत सारे फेक सो कॉल्ड बाबास गुरु ये सब हैं, बट इट डजंट मीन दैट प्योर डिवोटीज नहीं है. प्योर डिवोटीज आर ऑलवेज देयर, राइट? जेन्युइन स्पिरिचुअल मास्टर्स आर आल्सो ऑलवेज देयर. सो यस, श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक आता है, मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, which says out of many billions of people there may be only one who is interested in spiritual life. Yes. So ज़्यादातर लोग किस में लगे हुए हैं? Eating, sleeping, mating and defending. But out of millions and millions of people, there is just one or two such people, right, who are genuinely interested in doing bhakti. And जो है, sometimes they also go to some fake gurus and babas and okay, so now there are some questions about it. So how did those people who had previously been involved with fake guru find out Srila Prabhupada? मतलब जो लोग पहले कभी किसी fake gurus वगैरह के पास चले गए थे, so how did they come to Srila Prabhupada? So इसमें 4 options हैं. So their spiritual lives in every way was spoiled by the fake gurus, and by chance they found Srila Prabhupada. मतलब उनकी जिंदगी पहले से ही इतना चुकी थी और जस्ट गलती से उनको प्रॉब्लम मिल गए. सेकेंड ऑप्शन है God helps genuine seekers find genuine guru. तो जो भगवान है वो genuine जो seekers हैं उनको genuine guru से मिलवा देते हैं. थर्ड है God is within the heart of everyone. Therefore one can accept anyone as guru if they are attracted. मतलब भगवान तो सबके लिए है ही, गुरु के लिए भी है, तो सही है बेकार है जैसा मर्जी है ले लो, क्या फर्क पड़ता है, राइट? और चौथा है they were genuinely seeking something spiritual, thus they could not be cheated by fake gurus. कौन सा है? 2, 3 and 4. Okay, 2 क्यों? Because God helps genuine seekers find a genuine guru, right? Third है, again I'll repeat, God is within everyone's heart. ये तो ठीक है. Therefore one can accept anyone as guru. मतलब सबकी जगह भगवान है, किसी को भी एक्सेप्ट कर लो. रिक्शे वाला जा रहा है, सर भगवद गीता सिखा दो. कौन सा ठीक है?
कौन कहता है ठीक है, कौन कहता है सेकंड वाला ठीक है, कौन कहता है गलत है सेकंड वाला, सेकंड ठीक है, ओके। थर्ड वाला कौन कहता है ठीक है, ठीक है, थर्ड वाला आधा ठीक है, कौन सा लास्ट वाला, स्टार्टिंग के फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट वाला ठीक है, ओके। और फोर्थ कौन कहता है ठीक है, वही हाफ ओके। They were generally seeking something spiritual, thus they could not be cheated by fake rules. कौन कहता है ठीक नहीं है, मतलब हाफ भी ठीक नहीं है, ओके। कौन कहता है बिल्कुल ठीक नहीं है, फोर्थ पार्शियली ठीक है, ओके। पार्शियली क्यों ठीक है, मतलब पार्शियली गलत क्यों, जनरली सीकिंग रूल है, तो हाँ। अब फेक रूल क्या होती गलती थोड़ी होती है। ओके। यहाँ पे एक्चुअली फोर्थ वाला ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन ये है हाउ डिड दोज पीपल who had previously been involved in fake gurus, मतलब जब पहले कुछ लोग जो गलत so called bogus gurus के पास थे, when they found Srila Prabhupada, तो उनके पास वो क्यों चले गए। So the answer is जो fourth वाला वो ये कहता है they were genuinely seeking something spiritual, इसलिए वो जो fake gurus थे उनको पहचान कर वहाँ से चले गए, राइट। तो आंसर ठीक है, because Krishna inspires them कि वो वहाँ पर रुके ना रहें, राइट, ओके। So next question is, what should people do when they become suspicious because of their experience with fake rules? मतलब इसका मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति ये देखता है कि जो जिनके पास में पहले जाता था, they were not giving me the right education, वो तो मुझे कहते थे हाँ मीट मांस खा लो चलेगा, अब दारू पी लो हाँ बस थोड़ी काम कर दो, अभी कितने बार मिले हो, कितने बार मिले हो, 4 तो हफ्ते में 2 बार कर दो, 1 बार कर दो, राइट। एंड देन दे से कि 4 नियम नहीं लगे, कोई एक पालन कर लो, कौन सा अच्छा लगता है आपको, वो पालन कर लो, आपको कौन सा अच्छा लगता है वो एक पालन कर लो, राइट, सारे चलते हैं। सो दैट्स हाउ दे डू, दे चीट देयर डिसाइपल्स, राइट। सो द क्वेश्चन इज व्हाट शुड पीपल डू व्हेन दे बिकम सस्पिशियस बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस इन फेक रूल्स। किसी कभी ऐसा एक्सपीरियंस लिया खराब, नाउ व्हाट शुड दे डू, राइट। तो पहला ऑप्शन है इफ यू आर चीटेड वंस you will always be cheated, अगर आप एक बार चीटेड हो आप हमेशा चीटेड होगे। therefore learn by listening to inner voice, सिर्फ अपने अंदर की आवाज़ को सुनो और किसी को मत सुनो, कोई सुनने लायक नहीं बचा दुनिया में, ठीक है, नहीं है, क्यों ठीक नहीं है, जैसे कि अगर कोई एक बार गलत डॉक्टर के पास जाता है तो क्या करते हैं, अगली बार डॉक्टर के पास जाना बंद कर देते हैं, नहीं, अच्छे डॉक्टर ही तो ढूंढते हैं, राइट, वो भी खराब लगा तो किसी से डॉक्टर के पास चले जाएंगे, बट वी डोंट स्टॉप गोइंग टू डॉक्टर, राइट। सो सेकंड ऑप्शन इज इफ यू आर चीटेड वंस डोंट गेट डिसहार्टेंड, बेटर टू रीड गीता योरसेल्फ, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। इज इट राइट और रॉन्ग, राइट, इट्स राइट, हाँ मतलब किसी की गाइडेंस है, बट यहाँ पे यार खुद से जरूरत नहीं आ रहा है किसी और, राइट और रॉन्ग, रॉन्ग, क्यों रॉन्ग, भगवान कहते हैं उपदेश शक्ति दे ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना, क्योंकि उन्होंने तत्व का दर्शन किया है, दैट इज व्हाई दे कैन टेल अस, राइट। जैसे कि सपोज कोई मान लो नीचे है दलदल में फंसा हुआ, राइट, क्या वो खुद को बाहर निकाल सकता है, क्यों, दलदल में है, उसको कैसे निकालेगा। सो वी नीड समवन फ्रॉम आउटसाइड, तो हाथ देगा, प्रभु हाथ पकड़ो मेरा, बाहर निकलो, एंड देन ही विल पुल हिम आउट, राइट। सो वी नीड समवन हु इज नॉट contaminated like us and they can pull us out. So third option is all those who are interested are being cheated by so-called spiritualists. Learn to tolerate. मतलब cheated तो होना ही है, tolerate करते रहो, सब cheater ही है, ठीक है, नहीं, no, of course not. And then fourth is if you are cheated once, it's not that you will always be cheated. Search for a genuine guru. Yes, right. So even there is a verse in Srimad Bhagavatam जो कि which tells the need for a spiritual master. So it says तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणि उपशमाश्रयम्। इसकी ट्रांसलेशन है any person who is seriously desirous of achieving real happiness must seek out a bona fide spiritual master and take shelter of him by initiation,
The qualification of a spiritual master is that he must have realized the conclusion of the scriptures by deliberation and arguments, thus be able to convince others of these conclusions. Such great personalities who have taken complete shelter of Supreme Lord, Supreme Personality of Godhead, leaving aside all material considerations, are to be understood as bona fide spiritual masters. मतलब कि the spiritual master must have genuinely understood the scriptures and he should teach from the scriptures. ऐसे नहीं कि मन गलत कुछ भी बोल दिया या फिर मुझे ये लगता है according to me this is true या मुझे एकदम से ऐसा आभास हुआ I got enlightenment and now I am speaking the truth. No, we can only speak from the scriptures. A true bona fide spiritual master will just repeat the words of Krishna because we are contaminated, right? With contaminated intelligence, we cannot speak what is true. But when Krishna gives scriptures, जो भगवान देते हैं through the medium of Srila Vyasadeva, who is his incarnation, so that is not contaminated. क्योंकि शास्त्रों में बताया गया अपौरुषेय, जिसे किसी आम पुरुष ने नहीं लिखा है. They have been given directly by Krishna. Yes. Now identifying the genuine and the fake. So since the Guru must transmit the truth of Vedic knowledge perfectly, he plays a very crucial role. Guru ka role is very important, very crucial. So we should know who Guru is and who is not a Guru. Because अब ये identify करना बहुत जरूरी है कि किसको हम गुरु कह सकते हैं, किसको नहीं कह सकते. So the gullible masses, मतलब ज़्यादातर लोग blindly follow the fake godmen and are led to suffering in this life and the next. जैसे कि बताया जाता है अगर कोई अंधा आदमी जो है पीछे बड़े सारे अंधों को लीड कर रहा है, अब वो क्या है इसके हाथ देके चल रहे हैं. एक बार देखा किसी अंधे व्यक्ति चलते हैं, 2-3 आगे चलते हैं, तो एक आगे चलता है लाठी से, 2-3 उसका हाथ पीछे पीछे पकड़ के चलते हैं, राइट. अब इसको दिख नहीं रहा, क्या इसको आइडियली बाकी सबको लीड करना चाहिए? नहीं करना चाहिए. समवन हु कैन सी ही शुड लीड. बट अब ये लीड कर रहा है, आगे गड्ढा आता है उसमें गिर जाता है, वे विल अदर्स को वो भी सब गड्ढे में जाएंगे. यस, दैट इज व्हाट हैपेंस विद द फॉलोअर्स ऑफ द फेक गुरु. Those who do not give the bona fide knowledge जो कि हमारे स्क्रिप्चर्स में है, राइट. सो दे themselves go to ditch और जिनके फॉलोअर्स हैं वो भी वहीं जाते हैं. ओके, अच्छा आप लोग में से कौन कौन अपनी वाली एक्टिविटी करना चाहते हैं? हम आगे चलते हैं. जो करना चाहते हैं वो ओके. those who want to just move on. इसके बाद जो कुछ नहीं करना चाहते अभी घर जाना चाहते हैं. ओके, ठीक है. सो आई थिंक वी कैन क्विकली डू दिस. इसमें क्या है, जस्ट आउट ऑफ हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ, उस बेसिस पे आपको ये बताना है दैट ये जो गुरुजी हैं इनकी हरकतों से ये फेक है या थोड़े इस वाली पर्टिकुलर चीज़ से रियल लगते हैं, राइट. सो फर्स्ट वन इज गुरुजी ट्रेवल्स बाय प्लेन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड गोज इन कॉस्टली कार्स लाइक बेंटली आल्सो इज फेक गुरु का असली गुरु या फिर थोड़ा डाउट है एंड यू वांट मी टू क्लियर? डाउट है, यस, होना भी चाहिए. बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ कि गुरु किस पर्पस से करते हैं, राइट. उनकी खुद की क्या डिजायर है. लाइक वी सी देयर वाज समवन कॉल्ड रावण रहीम, रावण रहीम. So he also wanted very costly cars, right? Very rich. कुछ लाख रुपए शूज होते थे, प्राइवेट प्लेन्स वगैरह. बट फॉर whom? For himself, right? Because उनके खुद के अंदर enjoyment होती है. Did he tell anyone about Krishna? Was he glorifying Krishna? No. So that is why such a person cannot be a genuine guru. But a genuine guru, sometimes it may happen that just to teach others how to serve God, they themselves can accept the service. Just to teach them how to serve God. ऐसा नहीं है कि वो खुद चाहते हैं, right? But just to teach others right, how to serve. तो उस वजह से they might accept, but just externally. और पता कैसे लगेगा whether they are attached or not? अगर वो चीज़ उनके पास नहीं भी है या है, they are same. भगवान के लिए उनका प्रेम है, it remains unaffected, completely unaffected. जैसे श्रील प्रभुपाद when he was in वृंदावन, उनका क्या था, छोटा सा पुराना टूटा हुआ एक कमरा था. when we go to वृंदावन we will go there. जो प्रभुपाद का रूम है वहाँ पे. अभी भी कोई गया वहाँ पे ऑलरेडी राधा दामोदर मंदिर में? आप गए? हाँ, हम सब वहाँ पे चलेंगे. ऑल्दो अब उस रूम को क्योंकि इस्कॉन ने ही थोड़ा रेनोवेट कर दिया है उस टेम्पल के अंदर, बट वी विल ऑल गो देयर. वी विल सी कितना छोटा सा रूम है. हमारे इवन घरों में जब बाथरूम से ज़्यादा बड़ा होता है,
उसी में प्रभात की टीचर है, उसमें वही प्रभात गुड ट्रांसलेशन भागवतम फर्स्ट कैंटो सब कुछ वही है। अभी तो बहुत ठीक है ना, एट दैट टाइम हमने देखा दीवार सब टूट रही है, ऊपर सब पानी छोड़ रहा है इस तरह से। एंड ही वॉज ऑलवेज इन एक्सटेसी, ऑलवेज ब्लिसफुल वहाँ पे वृंदावन में। एंड when he went to USA, वहाँ पर भी he was in a rented apartment, किसी और के साथ रह रहे हैं, हिप्पी के साथ में। उसने कई बार प्रभुपाद को इवन मारने की कोशिश की जान से, राइट। He was still okay। कई बार प्रभुपाद जब हिप्पीज वॉशरूम के लिए लाइन में खड़े होते थे टॉयलेट के लिए, प्रभुपाद इज ऑलवेज स्टैंडिंग इन द लाइन वहाँ पर, और उनके पास अपना कोई ठिकाना नहीं है, 70 साल की एज में, एंड ही इज द सेम। इवन संन्यास से पहले उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो 2 जोड़ी धोती कुर्ता खरीद सके, राइट। इवन उन्होंने अपने गॉड मदर से रिक्वेस्ट की थी, बिकॉज आई एम प्रीचिंग, मैं इतनी सेवाएं कर रहा हूँ, आप मुझे जस्ट एक थोड़े से लक्ष्य दे दीजिए ताकि मैं 2 जोड़ी धोती कुर्ता खरीद सकूँ, क्योंकि मुझे कई बार बड़े बड़े लोगों से बात करनी पड़ती है प्रीचिंग के लिए। एंड दे डिक्लाइन इनिशियली लाइक दैट। सो इन दिस वे प्रभुपाद वाज कंप्लीटली अनअफेक्टेड। कितनी उनको सफलताएं मिल रही हैं, सफलताएं नहीं मिल रही हैं, बट लेटर ऑन इवन व्हेन ही वाज गेटिंग द सक्सेस, व्हेन ISKCON एस्टैब्लिश हुआ, व्हेन ही वाज प्रीचिंग वर्ल्ड वाइड एवरीवेयर, then just to preach to his disciples that how to serve the Guru, how to serve Krishna, he used to accept the luxuries. But किसके लिए? खुद के लिए नहीं, just to teach his disciples, because Guru क्या होता है? Guru is a medium between Krishna and us। क्योंकि भगवान से हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट। बट अगर हम नहीं करेंगे, वी डोंट नो अबाउट कृष्णा, हु इज कृष्णा। भगवान स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वी आर इन द मटेरियल वर्ल्ड, वी आर सफरिंग हियर, राइट। अब भगवान तो यहाँ पर हमेशा नहीं रहते। कृष्ण कम्स यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। यहाँ पे आते हैं, धर्म की स्थापना करके चले जाते हैं, बट देन जब वो चले गए, हाउ डू वी नो कि धर्म पे चलना कैसे है? द स्पिरिचुअल मास्टर इज अ कनेक्शन बिटवीन कृष्णा एंड अस, बिकॉज हमारे यहाँ पे व्हाट इज आवर डिसीज हियर? वी आर एनवियस ऑफ कृष्णा, राइट। हमने डिस्कस किया था व्हाई, बिकॉज देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लिविंग एंटिटीज। कुछ ने चूज किया आई लव यू गॉड, आई लव यू कृष्णा, then they go to spiritual world to serve Lord, but there are some like us who are not so fortunate, जिन्होंने अपने free will का misuse किया and they wanted to envy God, they wanted to envy Krishna, right, and they come here, but ये envy जाएगी कैसे? When we serve Krishna, but we can't see Krishna, हमें भरोसा कैसे होगा Krishna is accepting my service through the medium of spiritual master? When we serve the Guru and Guru accepts the service on behalf of Krishna, then Krishna accepts, right। इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करते थे बाय द एग्जांपल ऑफ वाइसरॉय। जब इंडिया जो है ब्रिटिश रूल में था, सो देयर वाज अ वाइसरॉय जिसको यहाँ पे सेंड करते थे। तो नॉर्मली क्या होता है, क्वीन इज देयर, वहाँ पे क्वीन या किंग जो रूल करता है, राइट, ब्रिटिश एम्पायर। बट द क्वीन कैन नॉट बी एवरीवेयर। इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी था, ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिश कॉलोनी था, साउथ अफ्रीका ब्रिटिश कॉलोनी, सो मेनी ब्रिटिश कॉलोनीज। हर जगह तो नहीं जा सकता ब्रिटिश क्वीन या किंग हमेशा हर समय के लिए। सो दे यूज्ड टू मेक वाइसरॉय। वाइसरॉय क्या होता है? दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग और क्वीन। तो जो भी राइट्स किंग या क्वीन के पास है, वाइसरॉय के पास इक्विवेलेंट होते थे, बट ही वुड नॉट यूज देम फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। वाइसरॉय जो होता था, तो जब भी कोई मान लो किसी बड़े व्यक्ति को, जो इंडिया में किंग्स होते थे, उनको ब्रिटिश एम्पायर को कुछ गिफ्ट देना होता था, दे वुड गिव इट टू वाइसरॉय, और वाइसरॉय एक्सेप्ट करता था ऑन बिहाफ ऑफ किंग। बट नथिंग बिलोंग्स टू वाइसरॉय। ये सारा जाता था बाद में क्वीन या किंग के पास, ब्रिटिश एम्पायर यूके में। वाइसरॉय के पास उसकी सैलरी आती है, उसके पास और कुछ नहीं था, राइट। सिमिलरली व्हेन द रिस्पेक्ट्स आर पेड टू गुरु, and the respect when the offerings are given to Guru, it does not belong to Guru. So Guru की अपनी नहीं होती, right? It all is accepted by Krishna, but Guru is just teaching how to serve Krishna, right? Okay. So second one is Guruji's associates arrange merciful charan sparsh or touching feet. Okay, मैं समझा देता हूँ क्या होता है। So कुछ उनके कुछ ऐसे लोग हैं गुरु के आसपास रहते हैं, वो कहते हैं देखो भाई पैर छूने करवा देंगे, लेकिन थोड़ा पैसा लगेगा, 5 लाख रुपए दे दो, उसके जाके पैर छू। सही गुरु है, नकली गुरु है? Yes, a real bona fide guru never asks for anything. He just wants you to serve Krishna. That's it. Because he himself is serving Krishna, he wants you to serve Krishna. Nothing else. इसके अलावा कुछ भी नहीं, right? फर्स्ट वाला क्या मानना है? हाँ? फर्स्ट वाला क्या मानना है? कहाँ क्या रहा? फर्स्ट वाला अगर वो खुद की भोग इच्छाओं के लिए कर रहे हैं, it's wrong, और ये पता लग जाएगा। And if they are accepting just for service,
मतलब जैसे कि इस्कॉन में जो गुरुज हैं, जो सन्यासीज हैं, दे ट्रैवल एक्सटेंसिवली। ट्रैवलिंग इज नॉट ईजी। आज यहाँ पर उनको क्लासेस देनी है, कल उनको देनी है वृंदावन, परसों देनी है उनको मायापुर, अगले महीने देनी है उनको ऑस्ट्रेलिया में। और इनका इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता है, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। इतना जेट लैग होता है, इतना ट्रैवलिंग एट द एज ऑफ 60, 70, 75, इस एज दे ट्रैवल सो मच। अपनी बॉडी को पेन्स देने के बावजूद दे ट्रैवल सो मच just so that they can fulfill the desire of Srila Prabhupada, their own spiritual master. जैसे Srila Prabhupada जब गए थे वेस्ट में, so जो नौसिखिए लोगों की देखने से कि देखो देखो इनके अंदर कोई इच्छाएं हैं, ये भी तो वेस्ट घूमना चाहते हैं, but was it the reality? अगर कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि तो रास्ते में 2 हार्ट अटैक के बावजूद फिर इसके लिए वो नो, Srila Prabhupada was very happy being in वृंदावन। वहाँ पे जमुना जी साथ में बैठी हैं, इतनी सुंदर खुशबू आती है वृंदा देवी की लीव्स की, तुलसी प्लांट होता है, इतनी सुंदर खुशबू आती है। एंड देन देयर इज यमुना देवी एंड देयर आर समाधीज ऑफ आवर आचार्यस इन वृंदावन। ही इज वेरी हैप्पी। तो जरूरत क्या थी ऐसी जगह फालतू जाने की? न्यूयॉर्क वो भी बाउली स्ट्रीट, जहाँ पे ऐसे एकदम हिप्पीज नीचे लेटे हुए हैं, अपने ऊपर एक दूसरे को यूरिनेट किया हुआ है उन्होंने, एक दूसरे के ऊपर लेटे पड़े हैं, सोए पड़े हैं, महीनों महीनों से नहाई नहीं है, और उनके बीच में जाकर टाप प्रभुपाद जी वहाँ पे जा रहे हैं अपने रूम के अंदर। And that too he was once someone tried to murder him, right? So what was the need for it? Just to please his guru, for the pleasure of his guru. Right? Okay. So third one is so ये हमने डिस्कस कर लिया। गुरु जी कहते हैं ठीक है स्मोकिंग चलेगा, ड्रिंकिंग चलेगा, बट थोड़ा पैसा लाते रहो, बाकी सब ठीक है। Is he right or wrong? Wrong. He's bogus guru. Yes. Yes. So fourth one is Guruji is God's representative, भगवान की representative है, and he speaks about God and nothing else. वे केवल भगवान के ही बारे में बोलते हैं, and he does not teach about how to enjoy the material world in a better way. वो ये सब नहीं सिखाते कि कैसे भौतिक जीवन कोई और अच्छे से जियो, जैसे सो कॉल्ड कुछ लोग सिखाते हैं, राइट? कि कैसे आप ऐसे करके अपना भौतिक जीवन सुधार सकते हो, अपनी डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। इसी में उनका घंटा होने लगते चले जाएगा, राइट? हाउ टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप्स, कैसे आप मीन्स मीन्स ऑल दिस थिंग्स, कैसे कुंडलिनी अब जागृत करो, ये करो, वो करो, राइट? सो दे ऑलवेज कीप टेलिंग अबाउट हाउ टू इम्प्रूव योर मटेरियल, बट a genuine guru will always tell you this material world is not a nice place to live. All you have to do is do bhakti and get away from here. Go back to Krishna Look, go back to Golok Vrindavan. ये एक bonafide spiritual master बताएगा, that यहाँ पर जब तक हो you keep doing your duties, beautiful रहो, but you have your attachment to Krishna. यहाँ पे किसी चीज़ में attach मत हो, you just keep doing your duties, जिसको अच्छे से करना है, and then just go back. This is Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, who is spiritual master of our Srila Prabhupada. He used to say that this material world is like a toilet. Toilet में बड़ा करने की इच्छा रखता है कि आज हम यहीं पे मजे से रहेंगे, बढ़िया खुशबू आती है, कोई करता है ऐसे? No one does. We just go there, do our business and get out. That's what Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur used to say. This material world is like a toilet. You have come, do your business and get out. ये इसलिए this is what a true spiritual master tells. बट जब बोगस है वो आपको यही बताते हैं यहाँ पे कैसे आपको मजे करने हैं। अब किसी को भी बाहर अगर सुनो, सो कॉल्ड जग्गी जी हमारे जग्गी वसुदेव, दे ऑलवेज ही टेल्स द सेम थिंग कि बाकी नहीं है, हाउ टू बिकम कंफर्टेबल इन दिस लाइफ। बट भगवान कहते हैं इस दुनिया को श्रीमद् भगवद गीता में, दिस इज दुखालयम अशाश्वतम। भगवान जो है मैन्युफैक्चरर एंड ही हैज गिवन अस द मैनुअल ऑफ दिस लाइफ, and that manual is Bhagavad Gita, and in that manual the manufacturer is writing that this world is dukhalayam ashashvatam. Dukhalayam means वर्ड ऑफ नॉलेज. yes, हमें let's say पुस्तकालय में क्या मिलता है? हिमालय में दुखालय में क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। कृष्ण नहीं, दुख ही है यहाँ पे, जो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी है कर लो, फाइनली दुख मिलता है। बिकॉज दुख है बर्थ, डिजीज, ओल्ड एज एंड डेथ। नो मैटर व्हाट यू डू, these four will remain. आप थोड़ा एडजस्टमेंट करते रहो, लगेगा आपको कंफर्टेबल हो गया, बट इट विल नॉट लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग। इसलिए भगवान कहते हैं अशाश्वतम। एडजस्टमेंट कर भी लो, इट विल बी टेम्परेरी। अशाश्वतम मीन्स टेम्परेरी। दुखालयम है, और अगर आप कहो हाँ दुखालयम में मैं खुश हूँ, बट देन यू विल बी किक्ड आउट फ्रॉम दिस बॉडी, विल गो टू नेक्स्ट बॉडी बेस्ड ऑन योर कर्मा, राइट? दिस इज नॉट अ परमानेंट प्लेस एंड नॉट
not a very nice place for a gentleman. Okay, we come to next one. Okay, we have already discussed this. Okay, अगर कोई गुरु ऐसा कहता है कि क्या ये अपनी अब ये शास्त्र वगैरह पढ़ते हो, किसने कहा, कहाँ लिखे हैं? आप वो सुनो जो मैं कहता हूँ, शास्त्र वगैरह नहीं सुनने होते, ये बुकिश नॉलेज। आप गुरुवाणी सुनो, गुरुवाणी सबसे ऊपर है। ये सही है गलत है? क्यों गलत है? Yes, Guru always speaks what Krishna tells. Yes, because Guru never tells कि ये मेरा ज्ञान है। Guru जो है, he is always a servant of his Guru. उनके गुरु हैं, he is servant of his Guru. So it is said that in Vaishnava Sampradaya, the place of Guru is always vacant. क्योंकि अपना को गुरु मानते ही नहीं है। They always say, I am a servant of my Guru Maharaj. They say, I am servant of my Guru Maharaj. They say, I am servant of my Guru Maharaj. तो Guru Maharaj कौन है? Krishna. ऐसे करते करते कृष्ण तक पहुँच जाते हैं, right? Okay. Next one is Guruji tells whoever he sees, please become God conscious. आप please Krishna भावना भाविक बनिए. He never claims himself to be God. Rather, he teaches that he himself, as well as every Jivatma, is a servant of God. सही है गलत? सही है. Because here Guru is saying that I am also a servant of God, and you should also serve God. This is the right understanding. And what if some so-called Guru says, हाँ, तो मैं यहाँ पर आपको एक गुरु, मैं नहीं कह रहा, इस some Guru he tells कि मैं आपको यहाँ ये बताने नहीं आया हूँ कि केवल मैं ही भगवान हूँ, लेकिन आप सब भगवान हो, आप केवल जानते नहीं हो। What do you say? कौन कहते हैं सही है, कौन कहते हैं गलत है? कोई है जिसको थोड़ा डाउट है? अभी थोड़ा बहुत डाउट है किसी को? डाउट है? बताओ। हाँ, यस, भगवान हमारे अंदर है, बट हम भगवान नहीं है। इस शरीर के अंदर एक आत्मा भी है, परमात्मा भगवान खुद भी है, राइट? बट ऐसा नहीं कि हम खुद भगवान हो गए। जैसे एक डाल पे दो पंछी बैठे हैं, दोनों एक नहीं है, अलग अलग है, राइट? तो भगवान हमारे साथ में है, हमें गाइड करने के लिए है, हम भगवान नहीं है। सो गुरु नेवर टेल्स that either he himself is God or you all are God. ये सब फालतू चीजें हैं। हाँ, इसे मायावाद कहते हैं। Yes, very true. So a true guru will always tell that I am a servant of God and you are also servant of God. Okay. Next. Okay, गुरु अगर ये कहते हैं कि देखो भाई, अगर शिष्य बना तो ब्राह्मण कुल में होना पड़ेगा, ब्राह्मण नहीं हो तो तुम ये सब नहीं पढ़ सकते हो। सही है गलत है? Yes, because we previously discussed कि एक वर्ड्स है कि वह विप्र कि वह न्यासी शूद्र कहना होए, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु होए। मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मण होगा, कोई सन्यासी होगा, या कोई उच्च कुल, कोई नीच कुल, तभी वो शिक्षा ले सकता है, तभी वो गुरु बन सकता है। नो, एनीवन हु knows Krishna, he can be a guru. Anyone who wants to know Krishna, he can be a disciple. He can be a genuine seeker of the truth. Okay. Now we will learn who is a genuine guru. Yes, so one who speaks about God and not about how to enjoy material world in a better way. जैसे कुछ so called ऐसे लोग हैं थे बेसिकली, उनके फॉलोअर्स वही सेम चीज बताते हैं, जैसे कि आप इस दुनिया में कैसे भोग करो, इतना भोग करो कि भोग से बोर हो जाओ एंड देन आप समाधि ले लो, राइट? ऐसे भी कुछ सो कॉल्ड बोगस फिलॉसफीज हैं दुनिया में, शोशो की फिलॉसफी, राइट? सो वो फिलॉसफी है इतना भोग करो कि भोग से बोर हो जाओ, बट दैट इज बोगस। क्यों बोगस है, कोई बताएगा? ज़्यादा भोग करने से लेजीनेस आती है, डिजीजेस आती हैं। वेरी ट्रू। जैसे हम देखते हैं, बिकॉज ऑफ इलिसिट सेक्स पीपल गेट सो मेनी डिजीजेस, एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, राइट? इससे क्या होता है, मन हमारा इम्प्योर बनता है। एंड जैसे प्रोजी ने बताया कि ज़्यादा भोग करने से डिजायर्स खत्म नहीं होती हैं, बढ़ती हैं। जैसे कि भगवान गीता में इस चीज़ को और एक्सप्लेन करते हैं, एक अग्नि जल रही है, आप अग्नि में क्या कर रहे हो, सामग्री डाल रहे हो, पेट्रोल छिड़क रहे हो, ये सोचते तो बुझ जाएगी, बुझेगी नहीं बुझेगी। इवन क्या होगा, अगर शरीर भी काम करना बंद कर देगा ना, बूढ़ा हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, खत्म होने वाला होगा,
तब भी जो डिजायर्स हैं बहुत परेशान बैठे होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट इन द नेक्स्ट लाइफ विल गो टू एनिमल बॉडी, राइट? सो वी कैन नॉट सप्रेस दीज डिजायर्स, इट इज नॉट पॉसिबल टू सप्रेस। केवल हम भक्ति के ही बल से को कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज भक्ति से when we become Krishna conscious, our mind becomes pure. With the pure mind, we do not get such desires, right? क्योंकि जो गलत फिलॉसफीज हैं जैसे संभोग से समाधि, इसमें एक जो फ्लॉज समझ नहीं पाता ये सोशल जैसे लोग, वो ये था कि जब हम कुछ गलत काम करते हैं उसका एक परमानेंट संस्कार हमारे मन के ऊपर छप जाता है, राइट? हमेशा के लिए। जैसे आप सबको याद होगा जब भी किसी ने कुछ गलत फिल्म पहली बार देखी होगी, कुछ गलत फोटो देखी होगी पहली बार, कुछ बिलबोर्ड देखा होगा, उसको चाह कर बुरा बना देना मुश्किल होता है, राइट? कंप्यूटर से आप डिलीट कर दो हिस्ट्री, सब कुछ डिलीट हो जाएगा, बट मन से कैसे करोगे? इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि एक बार किया उसका एक संस्कार बन गया। जैसे आटा होता, गूंदा हुआ आटा, चाकू लेके एक लाइन मारो, वो एक लाइन बन गई। अगली बार फिर से दोबारा करो, गहरी लाइन, फिर और गहरी और गहरी और गहरी, अब वो बहुत गहरी हो जाती है। उसके अब कहीं पे भी उसमें एक बूंद पानी डालो तो उस लाइन में नीचे ग्रूव के अंदर जाके चला जाएगा, राइट? तो क्या होगा, जब हमारे संस्कार इतने गहरे हो जाएंगे तो कहीं भी कोई भी थॉट आता है ना, उसको उस गंदे थॉट से कनेक्ट कर लेते हैं। कभी देखा होगा लोग जैसे बाहर होते हैं, जो दोस्त वगैरह होते हैं, लड़के लड़के, तो कोई भी कुछ एक किसी ने कुछ बोला, उसको डबल मीनिंग निकाल के तो सेक्स लाइफ से कनेक्ट कर देते हैं। वाई? क्योंकि सेक्स लाइफ का थॉट इतना डीप हो चुका है, इतना डीप हो चुका है कि कोई भी बात वहीं से जाती है, राइट? तो संस्कार जो है बहुत गहरे हो जाते हैं। तो हम इतना भोग करें कि एक बार भोग से बोर हो जाए, ऐसा कभी नहीं होने वाला। भोग करने से उसके जो संस्कार हैं और गहराएंगे, राइट? So the genuine guru is God's representative, and he speaks about God and nothing else. He teaches the disciple how to go from material world to spiritual world. Yes. Now some qualifications of a guru, जिससे हम देख सकते हैं कि whether this person is guru or not, right? So if a guru's senses are not controlled and he does not teach his disciples to control their senses, then he is not qualified to be a spiritual master. अगर उसकी खुद की इंद्रियां जो है वे काबू में नहीं, अगर वो खुद कुछ अच्छा देखकर, कुछ चटपटा देखकर एकदम से हिल जाता है, हाँ चटपटा ऐसा बढ़िया है, राइट? या फिर कोई सुंदर सी लड़की जा रही है, उसकी नजर खुद नहीं चली जाती है, क्लास हो रही है, देते कहाँ पे था मैं, राइट? This person cannot do it. And yes, so there is a very beautiful scripture, उसका नाम है उपदेश अमृत। So हमारे एक बहुत ही महान आचार्य हैं जिनके बारे में हम वृंदावन जाने से 2 क्लासेस पहले सुनेंगे, उनका नाम है श्रीला रूप गोस्वामी। श्रीला रूप गोस्वामी he is the direct disciple of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and he gave us many scriptures, and उनमें से एक का नाम है उपदेश अमृत, श्री उपदेश अमृत। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन श्रीला प्रभुपाद ने दी है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर। उसका जो पहला वर्स है दैट टेल्स अस अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ अ गुरु। Okay, you can repeat after me. Vacho vegam manasa krodha vegam, Vacho vegam manasa krodha vegam, Jiva vegam udanupastha vegam, Jiva vegam udanupastha vegam, Etan vegan yo vishaheta dhira, Etan vegan yo vishaheta dhira, Sarvam api mam prithvim sashishya, Sarvam api mam prithvim sashishya। So इसकी ट्रांसलेशन है a sober person who can tolerate the urge to speak। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको जस्ट थोड़ा सा उकसाओ, कुछ भी बोल देंगे बड़, राइट? So they should be able to tolerate the urge to speak and the mind's demands। यानी माइंड की डिमांड होती है हमेशा भोग इच्छाओं के बारे में सोचना, but such a pure devotee can control mind's demand also। वो मन में भी भोग इच्छाओं के बारे में नहीं सोचता। The actions of anger and the urges of tongue, अपनी जीभ को, belly, पेट को, and genitals, अपने जनेंद्रियों को, they are all under control, then he is qualified to make disciples all over the world। ये external factor है। Internal factor means he should be a very attached pure devotee of Krishna। जब internally वो होगा, externally अपने आप manifest हो जाएगा, right? So we see some examples from our own acharyas also। जैसे हमारे एक बहुत महान आचार्य हैं, उनका नाम है श्रीला हरिदास ठाकुर। किससे सुना आप उनके बारे में? श्रीला हरिदास ठाकुर। Yes।
So maybe someday we will hear more about Haridas Thakur. So एक बार क्या होता है, हरिदास ठाकुर एक केव के अंदर भजन कर रहे हो, इस चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, and every day he used to chant 192 rounds of Hare Krishna Mahamantra. So he was a pure devotee actually. And one day what happened was एक वैश्या, एक prostitute उनके पास आती है, because जो उस जगह का जो राजा था वो उन हरिदास ठाकुर से जलता था कि सब लोग मेरे जो राज्य में ये सब हरिदास ठाकुर की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, मेरी राजा होकर इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते ये लोग, राइट। सो क्या करते हैं, अभी मैं इस हरिदास ठाकुर को मता चखाता हूँ, एक वैश्य को भेजूंगा, इसका पतन कराऊंगा और पूरे शहर में फैलवा दूंगा कि देखो देखो जो ये भजन करता था इसका देखो असली चरित्र कितना नीचा है। तो अब जब ये वैश्य हरिदास ठाकुर के पास जाती है तो रात का समय है और कोई दूर दूर तक नहीं है और उनके सामने उल्टी सीधे पोजेस करती है उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनको भोग की इन्विटेशन देती है कि आप मेरा भोग क्यों नहीं कर लेते, मैं तो आप ही के लिए आई हूँ, राइट। एंड हरिदास ठाकुर इज वेरी वेरी हम्बल एंड इज स्टैंडिंग हरे कृष्णा एंड इज वेरी हम्बली सेज कि माता जी एक्चुअली अभी मेरी ना चैंटिंग पूरी नहीं हुई है, एवरी डे आई नीड टू चैंट 192 राउंड्स, तो एक बार मैं चैंटिंग पूरी कर लूँ देन आई विल सेटिस्फाई योर डिजायर्स। एंड देन अगेन ही स्टार्ट चैंटिंग एंड इतने सुबह हो जाती है, ही चैंट्स 192 राउंड्स, तो खत्म होते ही and then फिर सुबह हो जाती है and then again the next night again she comes, तो वहाँ पे वहीं पे आसपास ही होती है हमेशा, and then again Haridas Thakur is chanting and chanting is not stopping, again this prostitute asks Haridas Thakur कि आप तो मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए, मैं केवल आप ही के लिए आई हूँ यहाँ पे, and then again Haridas Thakur she begs forgiveness, माता जी प्लीज मुझे माफ़ कर दीजिए, आज भी मेरी चैंटिंग पूरी नहीं हो पाई, मैं एक बार चैंटिंग पूरी कर लूँ then I will satisfy your desires, and इस तरह से 3 दिन भी हो जाते हैं। And in the end, this Vaishya, this prostitute starts crying कि एक्चुअली मुझे इस राजा ने आपको गिराने के लिए भेजा था, बट seeing your purity, seeing कि आप कितना शुद्ध भजन कर रहे हैं, इससे मेरा हृदय शुद्ध हो चुका है और मैं भी अपना ये जो वैश्य का जो काम है उसको छोड़ दूँगी और मुझे आप अपना शिष्य बनाइए और मुझे भी इस हरिनाम में इनिशिएट कीजिए, मैं भी इस हरिनाम को लेना चाहती हूँ। एंड देन हरिदास ठाकुर gave this holy name to her also. एंड उसने क्या किया, वैश्या ने इस वैश्य विद्या को छोड़ दिया, अपने जो भी पैसा उसने इस तरह से कमाया था वो सब बांट दिया ब्राह्मणों में वैश्यों में, एंड देन शी शेव्ड हर हेड, अपने हेड शेव किया एंड शी आल्सो चैंटेड समवेयर एल्स। दिस वाज द पावर ऑफ अ प्योर डिवोटी। सो सच अ डिवोटी कैन बिकम अ स्पिरिचुअल मास्टर, राइट, दिस इज द पावर ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर। एंड सिमिलरली वी सी इन केस ऑफ Srila Prabhupada, his own Prabhupada, his own spiritual master, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. So once what happened, there was a lady disciple, उनकी खुद की शिष्या थी उनकी, and she came to him कि मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना है, but personally, private में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैं आपसे पर्सनली डिस्कस कर सकती हूँ। And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was a very strong sannyasi and a नैष्ठिक ब्रह्मचारी। नैष्ठिक ब्रह्मचारी मीन्स जिसने जिंदगी में अपना एक ड्रॉप सीवन भी यूज ना किया हो, इज अ नैष्ठिक ब्रह्मचारी बचपन से, and he never lost any single drop. वास्तव में ये जो भक्त होते हैं, they come from spiritual world, right? And they come here just to preach. So, although she was of the age of his granddaughter, वो उनकी पोती के उम्र की थी, but still he refused to meet her privately, saying that it was not befitting a saintly person, that I cannot meet you in private. Even though उनके granddaughter की एज नहीं है, but he refused. I cannot meet you in private. आपको जो बात करनी है या तो आप यहाँ पे करिए, otherwise your husband has to be there. हम पब्लिक में करेंगे, otherwise आपके husband आपके साथ होना चाहिए. Otherwise I cannot meet you in private. Not because उनको अपने आप पे भरोसा नहीं है, but just to set the standards with how exalted a Vaishnava is. A Vaishnava has to be pure, very pure in one's character. Okay. Yes, and then Srimad Bhagavatam further says that Guru should be decorated with all saintly qualities. उनके अंदर सारे जो साधु के गुण होते हैं वो होने चाहिए। जैसे कि the symptoms of a sadhu are that he is tolerant, merciful, friendly to all living entities. He has no enemies. He is peaceful. He abides by the scriptures, and all his characteristics are sublime. Okay. Yes. So इसमें श्रील प्रभुपाद की पिक्चर है, and let's see what's written here. He will not give you a mantra and tell you that you will become God in 6 months.
means basically a guru is not interested in increasing cheap followers in big numbers. जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि बाहर के लोग देखो उनके इतने लाख इतने करोड़ फॉलोअर्स हैं, अपने इसमें कितने हैं, कितने आते हैं यहाँ पे ऑन द अंदर लोग, राइट? उनको देखो वो आसाराम बाबू, उनके 5 करोड़ फॉलोअर थे, हैं? ये रावण रही, उनके देखो 8 करोड़ लोग हैं उनके वहाँ पे, इतने सारे पॉलिटिशियंस आते हैं, क्या क्या नहीं है उनके यहाँ। अरे आप लोग यहाँ कितने कितने डिवोटीज आपके वर्ल्ड में कितने हैं? 10 लाख 15 लाख बस, इतने ही है ना। सो देन यू सी अगर कोई लेट्स से नकली हीरो की दुकान पे है, वहाँ पे उसको बहुत भीड़ मिल जाएगी, राइट? यू सी सो मेनी पीपल जो कि वहाँ पर आएंगे कि 100 रुपये में हीरा मिल रहा है, 50 रुपये में हीरा मिल रहा है, दे दो हीरा चाहिए, कितने मिल रहा है? 50 रुपये में ले लो, पूरी भीड़ होती है। बट जो एक एक्चुअल ज्वेलरी शॉप होती है जहाँ पे एक हीरे की कीमत मान लो 10 लाख रुपये का एक छोटा सा हीरा है, राइट? कितने रुपये मिलेंगे वहाँ पर? यू वोंट फाइंड मनी, बहुत ही कोई रेयर होगा। जैसे कृष्ण सेज 1 or 2 in a million, they are generally seeking the pure bhakti, right? So because the people they cannot pay the actual price. When you go to a bona fide guru, वो आपको ये नहीं कहेगा that you do whatever nonsense you want and then you can call yourself a devotee. No, you have to follow the 4 regulative principles. You have to chant Hare Krishna, and if you do that, then you are a devotee. But when people they don't want to accept, वो कहते हैं हमारे गुरु जी ये सब नहीं कहते, हमारे गुरु जी थोड़े चिल है, वो कहते हैं कर लो जो करना कर लो, पर एक बार साल में वृंदावन आ जाओ, हमारे आश्रम में आ जाया करो, दैट्स इट। हमारे गुरु अच्छे हैं, कि आप लोग पता नहीं क्या इतना नियम कानून ये सब बनाए हैं आप लोगों ने, and that is because they cannot pay the price, so they will not get the genuine spirituality, right? So Srila Prabhupada, okay, here it's written, he will not give you a mantra and tell you that you will become God in 6 months. कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ so called बाबा जी they will give you a mantra और कहेंगे इसको अच्छे से भजन करो और आप भगवान बन जाओगे। भाई जब कृष्ण when he was in the lap of Mother Yashoda, when he was a small baby, ऐसे नहीं वो उन्होंने कुछ तपस्या की अब वो भगवान बने, no, he was God when he was a small baby in the lap of Mother Yashoda. He was God when he was lifting the Govardhan hill at the age of 7. He was God when he is in the battlefield of Kurukshetra and he is teaching to Arjuna at the age of 100 plus. At that time also, भगवान भगवान बनते नहीं है, भगवान भगवान होते हैं, right? So that is one of the tests of a genuine guru. एक genuine guru को हम कैसे देखते हैं? उसकी केवल एकमात्र इस चीज से you can know whether this guru is genuine or not, and that is ब्रह्मनिष्ठा. ब्रह्मनिष्ठा means भगवान की कितनी निष्ठा है.